دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تاج کی، شاہ عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے، مجھ کو اپنی بارگاہ اہدیت میں کر قبول، مخلص الرحمہ جہانگیری خدا کے واسطے، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، سیرت فخر العارفین حصہ سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اج ان جملہ نظم سپاہر ہدایت مقبول بارگاہ رسالت جناب برادر محترم حافظ مولوی منشی عبدالقدیر صاحب دہلوی مدد اللہ العالی ہیں۔ آپ کا مولود و مسکن خاص دلی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ماہ شوال المکرم 1299 ہجری یوم دوشنبہ کو ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا روشن ستارہ آسمان سے اتر کر آپ کے سرہانے آیا۔ اس بشارت کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد جناب مولانا شیخ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کا اکابرین علماء دہلی میں شمار تھا۔ تمام عمر درس حدیث شریف کا مشغلہ رہا۔ آپ صاحب اجازت و خلافت اور متوکل درویش اور قدر 1807 ہجری کے مجاہدین سے تھے۔ آپ کے خاندان میں علم و فضل اوپر سے چلا آتا ہے۔ آپ کا ننیحالی رشتہ حضرت شیخ شیوخ العالم بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ تعلیم۔ ممدوح کی تعلیم آپ کے والد ماجد کی حیات میں شروع ہوئی اور آپ حافظ قرآن شریف ہوئے۔ سلسلہ تعلیم جاری تھا کہ والد صاحب نے وصال فرمایا اور کوئی مربی سرپرست خاندان نہ باقی رہا۔ آپ نے اپنے ذوق و شوق سے کچھ تعلیم حاصل کی اور خاصی لیاقت اور استعداد پیدا ہوئی۔ چونکہ آپ فطرتاً بہت ذکی اور فہیم اور قوی الحفظ تھے اور خداداد قابلیت موجود تھی۔ ذوق و شوق دینیات اور علوم و فنون کی کتابوں کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا۔ سینکڑوں کتابیں بلکہ کتب خانے پڑھ لیے اور چند دنوں میں کافی ترقی اور معلومات حاصل کی اور اپنے ہم چشموں میں ممتاز ہوئے۔ آپ نے خوش نویسی اور انشا پردازی میں کامل دستگاہ حاصل کی۔ قلم برداشتہ مضامین لکھتے۔ آپ صفت انشا پردازی پر ناز فرمائے تو بزا ہے، کیونکہ مولائی و مرشد حضرت فخر العارفین قبلہ قدس سرہ العزیز آپ کو جب خطاب فرماتے تو لفظ منشی کے ساتھ یعنی منشی عبدالقدیر۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ جس کتاب کا مطالعہ کرتے اس کے مضامین مستحضر ہو جاتے۔ بعض عالم فاضل اور انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کا یہ مقولہ ہے کہ جیسی معلومات علمی، تاریخی اور سیاسی مولانا صاحب میں پائی اور کسی میں نہ پائی۔ آپ کو کتب بینی کا شوق نہیں، عشق تھا۔ بغیر کتاب پڑھے نیند نہ آتی۔ سفر حج میں یہ آسی آپ کا رفیق سفر تھا۔ جتنی کتابیں آپ کے پاس تھیں ختم کر ڈالی۔ پھر جہاز کے مسافروں کے پاس جتنی کتابیں تھیں ان سب کو آپ نے پڑھا۔ دنیاوی تعلیم۔ دیانت اور امانت میں آپ بے مثل تھے۔ جناب استاد المحترم مسیح الملک حکیم اجمل خان صاحب دہلوی کے ہندوستانی دواخانہ میں آپ مینیجر تھے۔ مدت ملازمت پوری فرما کر مستعفی ہوئے۔ عقیدت و ارادت کی ابتدا۔ حکیم شمس الاسلام صاحب میرٹھی اور دیگر خادمان دربار جہانگیری سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت فخر العارفین قبلہ روح فدا قدس سرہ العزیز کے اوصاف و محامید اور کرامات و فتوحات کا ذکر خیر سن کر آپ کے قلب میں محبت اور اعتقاد پیدا ہوا۔ دلی میں خلیفہ۔ حضرت فخر العارفین قبلہ روح فدا قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا کہ 15-16 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ ہم دلی گئے۔ مسجد خون بہا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ نبی رضا خان مرحوم حضرت مولائی مرشدی قبلہ روح فدا کے خلیفہ تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے بے ساختہ بہت خلوص کے ساتھ تمنا ظاہر کی کہ دلی ہندوستان کا مرکز ہے۔ میری تمنا ہے کہ یہاں ہمارے پیر و مرشد مدد اللہ العالی کا کوئی خلیفہ رہے۔ خدا نے ان کی تمنا و دعا قبول کی۔ ان کے انتقال کے بعد منشی عبدالقدیر کو خلافت ملی۔ ہم نے منشی عبدالقدیر سے کہا تھا کہ دلی جاتے ہوئے لکھنؤ ٹھہرنا اور نبی رضا خان مرحوم کی قبر پر جانا اور فاتحہ پڑھنا۔ انہیں تمنا تھی کہ دلی جو ہندوستان کا مرکز ہے
हमारे पीर मुर्शिद मदजिल्लहुल आली का खलीफा वहाँ रहना चाहिए। उनकी ये दुआ और तमन्ना उनके इंतकाल के बाद खुदा ने पूरी की। जनाब मुंशी अब्दुल कदीर साहब जब चाटगाम शरीफ हाजिर खिदमत अक़दस हुए, हजरत पीर मुर्शिद फखरुल आरिफीन क़िबला क़द्दस सिर्रहू ने शफ़क़त और रहम करम फरमाया। 3 माह तक आप हाजिर खिदमत अक़दस रहे। इसी पहली हाजिरी में खिलाफत की नेमत से सरफराज फरमाए गए। फिर वापसी वतन की रुखसत और इजाजत मिली और हुक्म हुआ कि भागलपुर शरीफ और पटना और लखनऊ जियारत करते हुए दिल्ली जाना। हजरत क़िबला ने इरशाद फरमाया, मुंशी अब्दुल कदीर यहाँ बहुत दिन रहे। हमने इनमें एक नई बात देखी कि वो हमारे सामने कभी सीधे कद से नहीं चलते थे। वह जानकर ऐसा नहीं करते थे। हमने उनका जोशो खरोश और रक्स तो देखा नहीं, मगर हाँ ये बात जरूर देखी। उनके चले जाने के बाद हमने लोगों से कहा कि और कोई बात तो हमने मुंशी अब्दुल कदीर की नहीं देखी, मगर ये देखा कि वो सीधी कामत से हमारे सामने कभी नहीं चले। वो खुद ऐसा नहीं करते थे, बल्कि उनके कल्ब में एक चीज है जो उन्हें सीधे कद न चलने पर मजबूर करती है। हमने एक बात सुनी थी, हक सुब्हानहू तआला ने वह मुंशी अब्दुल कदीर के जरिए से दिखा दी। तब हमसे यहाँ के रहने वालों ने कहा कि हाँ, उन्हें आपके सामने सीधे कद चलते नहीं देखा। हमने कहा यह बात वह जानकर नहीं करते थे, बल्कि गैब से यह बात है। शायद इसी बात पर हक सुब्हानहू तआला ने उन्हें खिलाफत अता फरमाई हो। बहुत से बंगाली और हिंदुस्तानी आए, मगर हमने यह बात और किसी में नहीं देखी। अल्लाह आलिमुल गैब है, इसमें क्या बात है। मुंशी अब्दुल कदीर हमसे मोहब्बत करते हैं, हम भी उनसे मोहब्बत रखते हैं। इंशाअल्लाह दोनों के हक में बहुत अच्छा होगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें फलाए दारैन अता फरमाए। वह भी हमारे वास्ते दुआ करें। हमारे तमाम मुरीदों से मोहब्बत रखते हैं। सिकंदर शाह, मुंशी अब्दुल कदीर, सब हिंदुस्तानी मुरीद हमसे मोहब्बत रखते हैं। क्या तुम समझते हो हम उनसे मोहब्बत नहीं करते? हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि हमारी मोहब्बत उनकी मोहब्बत से ज्यादा है। फर्क इतना है कि उनकी मोहब्बत जाहिर है और हमारी बातिन। जब मछली के हलक में कांटा फंस जाता है तो वो तमाम तालाब में फड़फड़ाती और उछलती फिरती है, मगर कांटे से उसे निजात नहीं मिल सकती। इसी तरह मुरीद जब पीर के कांटे में फंस जाता है तब उसमें ज़ौक़ व शौक पैदा होता है। आशिक को अगर मोहब्बत है तो माशूक को भी मोहब्बत होती है। आशिक की मोहब्बत आश्कार होती है और माशूक की छुपी हुई। माशूक के दिल में अव्वल मोहब्बत पैदा होती है, फिर आशिक के दिल में पैदा होती है। मिसरा, इश्क़ अव्वल दर दिले माशूक पैदा में शुद। मसनवी शरीफ। मेल माशूकान यहाँ अस्त दस्तीर, मेल आशिक बादो सद तबलो तफीर। माशूक का इश्क दर पर्दा होता है। जब आशिक पर उसका असर पड़ता है तो उसका इश्क सैकड़ों तबल और नज़ीर बाजे और शहनाइयों के साथ नमूदार होता है। हमने कहा, अब्दुल कदीर तुम अल्लाह के मोहब्बत और ज़ौक़ शौक में यहाँ आए। अगर हक सुब्हानहू तआला का पहले तुम पर रहमो करम न होता तो तुम यहाँ कैसे आते। अब हमारा मौला तुम्हारे साथ क्या मामला करे। अल्लाह के रहम के हमेशा कदरदान रहो। तुम दूर से आए हो, याद रखना कभी अपने आमाल पर भरोसा न करना, अल्लाह ही पर भरोसा करना और यही अर्ज करना, या परवरदिगार तेरे लिए पेश करने के लायक हमारे पास कुछ नहीं है। याद रखना अगर कभी गफलत हो और उलझन या खराबी महसूस हो तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ना, जिक्र फिक्र मुराक़बा और मुशाहिदा करना, कसरत के साथ दरूद शरीफ और कुरान शरीफ पढ़ना, गिरिया और तौबा भी कसरत के साथ करना। हम क्या नसीहत करें। मिसरा, मन न करदम शमा हजर बकुनीत, मैंने नहीं किया आप बचकर रहना। बंदा से दरियात फरमाया कि मुंशी अब्दुल कदीर लोगों से वहशत करते हैं। अर्ज किया, जी हाँ। इरशाद हुआ कि जब तक मखलूक से वहशत नहीं होगी खुदा से उनसे नहीं पैदा होगा। फरमाया, एक शेर हजरत गौसे सकलैन का याद आया। पढ़कर माँ ने यह बयान फरमाया कि हमने अपनी हम सोहबतों से वहशत इख्तियार की और सहराई जानवरों से उनसे इख्तियार किया है। फरमाया कि मालूम होता है कि वह फुर्सत के औकात में मशगूल रहते हैं और मशगूली के औकात को ज़ाया नहीं करते। नजरे हजरत महबूब इलाही। जनाब मुंशी साहब मौसूफ से फरमाया कि ईद के दिन
जो तुमने हमको नजर दी, यह न आने का वक्त था और न जाने का। हमने कहा, यह नजर कैसी है? हमने उसे ले लिया और कहा, यह उनके ज़ौक की बात है। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जब हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शिद के खानकाह में थे तो आपने नजर दी थी। यह न आने का वक्त था न जाने का, मगर उस वक्त खानकाह में खर्च की जरूरत थी। इस इरशाद मुबारक में इंतसाब हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के फ़ेल मुबारक से है, जो बाइस इज्जत व सआदत है। इरशाद हुआ, दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, अगर खुदा को मंजूर है तो करीब हो जाएगी। तुम्हारा इम्कान गरीबों के मोहल्ले में है, इससे हम खुश हैं, बहुत अच्छा है। इत्मीनान मुंशी अब्दुल कदीर। फरमाया, मुंशी अब्दुल कदीर दूसरी मर्तबा जब यहाँ आए उस वक्त हम नींद में थे, सो रहे थे। वह बाहर ठहरे, खाना वगैरह खाया पिया। हम जब जागे और गुजरे की दरीची हमने खोली तो देखा कि मुंशी अब्दुल कदीर तालाब की तरफ जा रहे थे। हमने उनके चेहरे को गौर से देखा। उन्होंने हमें नहीं देखा, मगर हम उन्हें देखते रहे। हमने उनके चेहरे पर इत्मीनान देखा। उनके चेहरे पर ये नहीं मालूम होता था कि वह परदेश में है, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि गोया वह अपने ही मुल्क और मकान में है। परदेश में जब कोई जाता है तो उसके चेहरे पर एक किस्म की वहशत होती है और अपने मुल्क और मकान की याद का असर होता है, मगर उनके चेहरे पर हमने तोहश नहीं देखा और ऐसा इत्मीनान देखा गोया वह अपने ही मकान में है। किसी जानवर को पालो और उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए, चाहे कितनी खबरगिरी उसकी की जाए, मगर एक किस्म का तोहश अपने मकान और हम जिन्सों की वजह से होता है। यह बात मुंशी अब्दुल कदीर के चेहरे पर नहीं थी। हाजी लोग हज को जाते हैं और निहायत ज़ौक़ व शौक से हज अदा करते हैं, मगर एक किस्म की अजनबियत और तोहश उनके चेहरे पर होता है। अगर कोई समझदार आदमी है तो समझ सकता है कि यह अहले मक्का से नहीं है। यह बात हमने अब्दुल कदीर के चेहरे पर नहीं देखी। जैसे कोई शख्स किसी मुकाम को अपना मस्कन बना लेता है और अपने अजीजों के साथ वहां इत्मीनान से रहता है, वह इत्मीनान हमने मुंशी अब्दुल कदीर के चेहरे पर देखा। हर बात का एक खास असर होता है और वह इंसान के चेहरे से मालूम हो जाता है। मुंशी अब्दुल कदीर के चेहरे पर हमने कोई असर नहीं देखा। अल्लाह जाने इसमें क्या रमज है। यह खास बात है, यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बड़ी बात है। मालूम नहीं हक सुब्हानहू तआला ने उनकी रूह में क्या खास बात रखी है। खुसरो रहमतुल्लाह अलैह दरबार जहांगीरी। एक बार हजरत किबला काबा रूही फिदा सख्त बीमार हो गए, यहाँ तक कि आप पर गश्तारी हो गई, हालत नाजुक हो गई। बरादरान तरीकत ने हम खादिमान को इलालत का तार दिया। यह खादिम और जनाब बरादर मोहतरम मुंशी अब्दुल कदीर साहब तार पाकर दिल्ली से एक साथ दरबार आली में रवाना हुए। हजरत किबला काबा रूही फिदा को मर्ज में इस अरसा में बहम्दुलिल्लाह बहुत फायदा और नफा हो चुका था और हालत रूबा सेहत हो गई थी कि खिदमत अक़दस में हम गुलामान हाजिर हुए। आपने फरमाया कि अब मैं अच्छा हूँ और बीमारी की शिद्दत का सब हाल बयान फरमाया कि मुझ पर गश्तारी हो गई थी। मकबूल ये हजरत किबला काबा रूही फिदा के खादिम थे। कहता है कि हम बहालत गशी अब्दुल कदीर पुकारते थे। हमारी आवाज की तासीर से तुम दिल्ली से और ख्वाजा अब्दुल कदीर बनारस से आ गए। मुअल्लिफ अर्ज करता है कि हमारे बरादरान तरीकत में इस नाम के दो साहिबान थे। आपकी पुकार की तासीर से दोनों साहब हाजिर हुए। सुभान अल्लाह। फिर आपने फरमाया कि तुम लोग आए, खूब हुआ। मुंशी अब्दुल कदीर साहब की तरफ रुए सुखन और तवज्जो फरमा कर इरशाद हुआ कि अच्छा तुम आए हो तो हमको पढ़कर दम कर दो, पढ़कर फूंक दो। जनाब मुंशी साहब ने तामील इरशाद की और आपकी बलाएं ली और 100 जान से कुर्बान हुए। फिर आपने ये हकायत बयान फरमाई कि हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बीमार हुए। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जब हाजिर खिदमत अक़दस हुए तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि तुम पढ़कर फूंक दो और दम कर दो। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दम फरमाया और आप बफज़्ल खुदा सेहत याब हुए। इस इरशाद से पता चलता है कि हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को हजरत महबूब इलाही के दरबार में जैसी मकबूलियत खास थी, वैसी ही जनाब मुंशी साहब ममदूह को दरबार जहांगीरी में हासिल थी। गोया आप खुसरो दरबार जहांगीरी है।
पीरो मुर्शिद के नजर करम कीमिया असर और एजाज मसीहाई से मुंशी साहब ममदूह ने ये मकबूलियत पाई कि आज सैकड़ों और हजारों मर्द औरत, बच्चे, बूढ़े जनाब मुंशी साहब ममदूह की खिदमत अक़दस में पानी दम कराने और फूक डलवाने और दुआ के लिए हाजिर होते रहते हैं और शिफा पाते हैं। शेर, उनका दम करता आप आबे हयात है ज़बा मुंह में चश्माए हैवान। एक बार इरशाद मुबारक हुआ कि दो बातें अजायबातें रोजगार से हैं। पहला, पीर का अपने मुरीद की चीज को मुतबर्रक समझना। दूसरा, पीर का अपने एक मुरीद से दिगर सब मुरीदों के लिए दुआ कराना। जैसा कि हदीस शरीफ से वारिद है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मौला मुश्किल कुशा हजरत अली अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई थी कि हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से हमारी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत कराना। चुनांचे आप हजरात कड़न तशरीफ ले गए और हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से दुआ फरमाई और हजरत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद ने आपको खिलाफत देने के वक़्त हजरत गौसे पाक की दस्तार शरीफ को पहले अपने सरे मुबारक पर रखा, फिर अपनी दस्तार शरीफ को हजरत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सरे मुबारक पर बांधा। पीर का मुरीद की चीज को मुतबर्रक समझना और नबी का उम्मती को मुस्तजाब दावात जाहिर फरमाना और उनसे दुआ कराना, ये बातें अजायबातें रोजगार से हैं। इस वाक़े से दो अम्र साबित हुए, मुरीद का मकबूल खुदा होना और पीरो मुर्शिद की तवाज़ु और फरुतनी। जिस मुरीद को पीरो मुर्शिद और नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐसा मकबूल समझे, उसकी बुजुर्गी को दूसरे लोग क्या समझ सकते हैं। शेर, ऐन सआदत बज़ोर बाज़ु नीस्त, तानह बख्शत खुदाए बख्शंदा। दुनियादारी के पर्दे में दीनदारी। इरशाद फरमाया कि हमने मुंशी अब्दुल कदीर से कह दिया है कि दुनियादारी के पर्दे में दीनदारी करना, मगर दीनदारी के पर्दे में दुनियादारी मत करना। सफ़ा 42 जिल्द अव्वल सीरत फ़ख्रुल आरिफीन में जिक्र मुफस्सिल है। बस इस वजह से आपकी रोश हमेशा से दुनियादारों की सही रही। राजदारी और इख्फा दरवेशी मामूल रहा, ताल्लुक़ मुलाज़मत से हमेशा रहा और फुर्सत के वक्त में याद इलाही फरमाते। अलबत्ता आरास बुजुर्गान दीन में अक्सर हाजिरी देते और सफ़र अरब व इराक बगैर ज़ियारात और अदाए हज फरीज़ा किया। राजदारी इतनी कि आपको खिलाफत और इजाज़त है, इसका इल्म घर के लोगों को सालों नहीं हुआ। खिलाफत की नेमत से सरफराज होने के बाद 9 साल तक किसी को मुरीद नहीं किया। हजरत मौलाई व मुर्शिदी फ़ख्रुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म सानी ताकीदी होने पर आपने अशात सिलसिला शरीफ शुरू फरमाई। खुदा की रहमत से बहुत लोग दिल्ली और मुख्तलिफ मकामात के मुरीद हुए और फैज़याब हो रहे हैं और पाबंद शरा और साहिब ज़ौक़ हो गए और अहले हाजत रोजाना दुआ, ताबीज़ और पानी दम कराने आते हैं। आपकी दुआओं से हजारों बामुराद शिफायाब हो रहे हैं। आपके जुमरा मुरीदीन में जनाब नवाब मोहम्मद इस्माइल अली खान साहब फरमा रवायतों के और उनकी वालिदा माजिदा भी हैं और साबिक चीफ सेक्रेटरी नवाब साहिब टोंक जनाब सैयद हामिद हुसैन साहब भी मुरीद इसी सिलसिले आलिया कादरिया जहांगीरिया से हैं। करामत, आपके खसूर जनाब मौलवी अब्दुल गनी साहब मुत्तकी आदमी थे, मगर दरवेशी से लगाव ना था। उनके हम जलीस दोस्तों ने कहा कि आपको अपने दामाद की कदर नहीं और यह तारीफ की कि 20 आवारा औबाश बेनमाजी लड़के मुरीद होने पर उनकी मोहब्बत की बरकत से पाबंद रोजा नमाज हुए और नक्शा जिंदगी उनका बदल गया, नेक चलन और पक्के मुसलमान हो गए। इस हकायत को सुनकर मौलवी अब्दुल गनी साहब का ख्याल बदला और खुश एतकाद हुए। एक का मकबूल सबका मकबूल। हजरत हाफिज अलीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कि मस्जिद दरगाह हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के इमाम थे और हमारे हजरात पिराने अज़ाम कद्दसा सिर्रहू की जानिब से वकील दरगाह हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के थे। उनकी खिदमत अक़दस में जनाब मौलवी साहब के साथ कई बार बंदे की हाजिरी का इत्तेफाक हुआ। हजरत इमाम साहब ममदूह जनाब मौलवी साहब को देखकर हर बार बेसाख्ता खुश होकर फरमाते, एक का मकबूल सबका मकबूल, एक की सुहागन सबकी सुहागन। मैंने यह समझा कि शायद जनाब इमाम साहब ममदूह की यह आदत है या सुखन तकिया है कि हर आने वाले को ऐसा ही फरमाते होंगे। तहकीक से मालूम हुआ कि ऐसा नहीं,
بلکہ معاملہ خاص جناب مولوی صاحب موصوف کے ساتھ ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں۔ اس وقت سے میں حضرت امام صاحب کی بزرگی کا زیادہ معتقد ہو گیا، کیونکہ حضرت قبلہ روح فدا کے اس ارشاد مبارک سے مشروف ہو چکا تھا کہ ہمارے حضرت والد ماجد صاحب قبلہ کے آستانہ شریف کے خلفاء کو جو بزرگ صاحب نسبت ہوں گے دیکھ کر پہچان جائیں گے۔ اس خیال کے آنے سے میں نے یقین کیا کہ حضرت امام صاحب کا فرمانا جناب مولوی صاحب کو اس معانی میں ہے۔ مصرع: جسے پہچاننا آتا ہے وہ پہچان جاتا ہے۔ سید حامد حسین صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر راز فنا کا انگریزی ترجمہ کیا اور حضرت نے اسے شائع فرمایا۔ بحمدللہ اب کے 1373 ہجری مطابق 1953 عیسوی ہے۔ جناب محترم منشی عبدالقدیر صاحب مدد اللہ العالی دلی میں جلوہ فرما ہے اور 1947 عیسوی کے انقلاب میں آپ دلی سے باہر نہیں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیض اور سایہ ہم عاصیوں کے سر پر ہمیشہ قائم رکھے اور آپ کو صحت اور درازی عمر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصال: کافی عرصہ سے علالت کا سلسلہ جاری تھا۔ 9 جمادی الثانی 1378 ہجری مطابق 1 دسمبر 1958 عیسوی بروز یکشنبہ فجر کی نماز کے لیے تیمم فرمائے، پلنگ پر لیٹے ہوئے نماز فجر کی نیت باندھی اور بحالت نماز وصال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار مبارک علاقہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں متصل مقبرہ ہمایوں کے دوسرے دروازے کی مغربی سمت احاطہ درگاہ حضرت شمس الدین اوتاد اللہ معروف بہ پت شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملحق آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک مرز خاص و عام اور زیارت گاہ خلائق ہے۔